Good morning, all the students. I am Shivam Saxena, your social science teacher. Today we will start a new chapter, and the name of this chapter is Globalization and the Indian Economy. It has been taken from book Eco. It is also very much important chapter. See, first we will discuss about the topic. The name is globalization. What exactly the means of globalization? So before I start this topic, I want to take a simple example. Just flashback a few years ago, the availability of limited companies materials is available in the market, but now you can say different types of the companies materials is available in the market. You can also purchase the product which was being designed or made by a foreign countries companies too. So this is basic terms of globalization, when whole globes become a one small wall, and there should be a healthy and habitual communications between a one country's person to another country's person, or extending the business from one country to another country is the basically the terms as a globalizations. After the independence, India has set a trade barriers to stop the globalization, so that no other countries can control the India, because at that time and early time the India was a weak country, and the people who was operating the country was thinking about, if they invite the other countries company to establish their business in our country, so there might be the problem like they have already faced as the East India Company. So they stopped globalization in the country. So globalization is what? To give a access of other countries company in our country for spreading the business. There is a number of benefits of the globalization that we will discuss later on. See, ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, यानी क्या है वो एक इंटरनेशनल इंटीग्रेशन है. इंटीग्रेशन का मतलब कनेक्शन कह सकते हैं आप यहाँ पे, वेयर अराइजिंग फ्रॉम द इंटरचेंजिंग ऑफ वर्ल्ड व्यूज़. ओके, अब ये इंटीग्रेशन कहाँ से अराइज होता है? इंटरचेंज ऑफ वर्ल्ड व्यूज़, यानी एक प्लेस से जो व्यूज़ हैं या प्रोडक्ट हैं या आइडियाज़ हैं या कल्चर्स जब दूसरी कंट्री में जाकर स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं या उनके कल्चर के साथ मिक्स हो जाते हैं, दैट बेसिकली नोन एज अ ग्लोबलाइजेशन. इन पर्टिकुलर एडवांसेस इन ट्रांसपोर्टेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और इंक्लूडिंग द राइज ऑफ इंटरनेट आर द मेजर फैक्टर ऑफ ग्लोबलाइजेशन. प्रीसिपिटेट फंक्शन फर्दर इंडिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्टिविटीज़. ठीक है, यानी ग्लोबलाइजेशन एग्जैक्टली क्या है कि व्हेन spread or transportation of ideas, view or product of one country to another country, and this particular term is covered as a globalization. ठीक है, I'll move for the next one topic, that general connections with the countries. You can see the map, there is a connections between the country, but this is just a connections for the trading purpose or for business purpose and communication purpose only. ठीक है, अब देखिए हम ओवरव्यूज़ ऑफ द ग्लोबलाइजेशन देखेंगे. ह्यूमन इंट्रैक्शंस ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस हैज़ एग्जिस्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. ठीक है, यानी जो इंट्रैक्शन है ह्यूमंस का, वो एक लंबे समय से चल रहा है. द पीपल दोज हु आर लिविंग इन दैट कल्चर, दे ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न सम अदर कंट्रीज कल्चर्स टू. The overland silk routes and the connection Asia, Africa, Europe is a good example of transformative parts of the international exchange that exist in the old world. देखिए, अर्लियर क्या होता था? ट्रेडिंग का काम, इंटरनेशनल ट्रेडिंग का काम पहले भी होता था. तो सिल्क रूट था, इसके अलावा आपका और बहुत सारे कनेक्शंस थे जो एशिया और अफ्रीका और यूरोप के बीच में किए जाते थे. इसके अलावा philosophical, you can see a lot of different countries philosopher came into the India and has developed a lot of ideologies too. फिर आप इंडिया में जो रिलीजन्स देखोगे तो कुछ रिलीजन्स ऐसे हैं जो इंडिया बॉर्न है और कुछ ऐसे हैं जो फॉरेन कम्स टू द इंडिया है. ठीक है, तो ऐसे करके रिलीजन्स हैं, अदर्स थिंग्स हैज केम इनटू द कंट्री एंड मिक्सड विद द कल्चर एंड स्प्रेड देयर कल्चर्स इनटू द मिक्सड एज अ नेशन एंड एक्सचेंज द प्रोडक्ट्स एंड आइडियाज़. ठीक है, वो क्या करेंगे? एक नेशन में मिक्स हो जाएंगे और अपने प्रोडक्ट और आइडियाज़ को एक्सचेंज करेंगे. अब देखिए माइंड मैप ऑफ अ ग्लोबलाइजेशन जो है यहाँ पे दिया हुआ है. पहला है अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी, इक्वालिटी, कम्युनिकेशंस, रिकॉग्निशंस, ट्रेड, वर्सेस. ये सब क्या है कि जो अलग अलग चीज़ें हैं इन सब का इंटरलिंक करना या कन्वर्जेंस करना. जैसे एग्जांपल मान के चलिए कि सपोज़ वी आर लिविंग इन इंडिया,
सो वी जस्ट अवेयर अबाउट द इंडियन कल्चर ओनली, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको जो हमें जानने की ज़रूरत है बट वी डोंट नो। अगर ग्लोबलाइजेशन होगा और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कल्चर, आइडिया, फिलोसफी और प्रोडक्ट होगा, so we can also have a chance to learn the things which is happening in the next or worlds in other countries, ठीक है, and they will also have a chance to do the things। इंडिया में 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया। देखिए, वन थिंग मेक इट वेरी क्लियर कि इंडिया हैज़ इम्पोजेस अ टैक्सेस और अ स्टॉपिंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशंस विद द हेल्प फॉर व्हाट, फॉर द सेक दैट अदर कंट्रीज कैन ऑल्सो कंट्रोल द कंट्री एज इंडिया, ठीक है। तो रीज़न यही था कि इंडिया ने इम्पोज किए थे ट्रेड बैरियर्स। उसके पीछे बेसिक रीज़न ये था कि ऐसा ना हो कि दूसरी कंट्री कि कोई एक बड़ी कंपनी दोबारा से इंडिया पर आकर कब्ज़ा कर ले, क्योंकि 1600 में इंडिया पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और उसके बाद धीरे धीरे उसने पूरी इंडिया पे कब्ज़ा कर लिया था। तो 1947 के बाद जब इंडिया एक वीक कंट्री था, तो उस केसेस में उन्होंने ट्रेड बैरियर्स को मेंटेन किया ताकि जो लोग हैं वो इंडिया में अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश करके इकॉनमी को कंट्रोल ना कर लें और कंट्री को कब्ज़ा ना कर लें। 1991 टू 1992 में लिबरलाइजेशन किया गया, यानी वो ट्रेड बैरियर्स हटाए गए। अर्लियर देयर वाज अ इम्पोजमेंट ऑफ द ट्रेड बैरियर्स बट फ्यू थिंग्स वाज एग्जम्प्टेड फ्रॉम देयर। वो फर्टिलाइजर्स थे, पेट्रोलियम्स थे, वो एग्जम्प्टेड थे, उनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉसिबल था। देखिए, मेन फीचर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और फिस्कल्स रिफॉर्म्स। देखो बहुत ध्यान से, लिबरलाइजेशन का मतलब है मीन्स रिमूव अननेसेसरी ट्रेड रिस्ट्रिक्शन एंड मेकिंग एन इकॉनमी मोर कम्पिटेटिव। लिबरलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है कि फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए कि कुछ 1992 के बाद इंडिया में बहुत सी चीज़ें मिलना शुरू हो गई। आपके पास सैमसंग के मोबाइल हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। पहले वो सब चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि दूसरी वर्ल्ड की कोई भी कंपनी इंडिया में अपने प्रोडक्ट को सेल करने पे ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। उस टैक्स जो अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन था उसको रिमूव करना क्या कहलाया, लिबरलाइजेशन, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन का मतलब है कि रिमूविंग द अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस। प्राइवेटाइजेशन वो है कि पूरी की पूरी इकॉनमी इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय, देखिए, मींस रिमूविंग अ स्टिक कंट्रोल ओवर अ प्राइवेट सेक्टर एंड मेकिंग देम फ्री टू टेक डिसीजंस। प्राइवेटाइजेशन वैसे यही है कि आप किसी भी पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनीज़ पे जो गवर्नमेंट्स के स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स हैं उनको रिमूव करके उनको अपने हिसाब से डिसीजन लेने की फैसिलिटी प्रोवाइड करना। ग्लोबलाइजेशन तो पता ही आपको बता ही दिया था, इंट्रक्शन अमंग द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ ट्रेड, फाइनेंस, प्रोडक्ट, टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज़ एंड इन्वेस्टमेंट। इंट्रैक्शन करना, इंटीग्रेशन क्रिएट करना, वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज़ की इकोनॉमी का आपस में समिशन, आपस में कलेक्शंस, ग्लोबलाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन आपको मालूम ही होगा, मीन्स द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द टॉप प्रायोरिटी ऑफ टू द मॉडर्न टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी, यानी न्यू टेक्नोलॉजी पर जब इकोनॉमिक पॉलिसीज लाई जाती है। उसके बाद फिस्कल रिफॉर्म्स क्या, मीन्स कंट्रोलिंग द पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीज द रेवेन्यू इन ऑर्डर टू डिसिप्लिन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, पब्लिक एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना है और रेवेन्यू को इंक्रीज करना है। अब देखिए, आर्ग्यूमेंट्स इन द फेवर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इंक्रीज़ द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को करते हैं और इन बदलाव को करते हैं तो आपकी इकोनॉमिक रेट्स अप होती है। फॉल्स द फिस्कल फिलेंस, ठीक है, प्राइस कंट्रोल होते हैं, रिड्यूस द पॉवर्टी एंड इक्वालिटी रिड्यूस होगी, इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द पब्लिक सेक्टर एक्सेप्ट। ये थोड़े से अगेंस्ट हैं कि अगर आप पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें। अच्छा, इसमें दो चीज़ें और आती हैं, वो एक ये है कि फॉरेन ट्रेडिंग। फॉरेन ट्रेडिंग क्या है कि व्हेन वन ऑफ द कंट्री इज़ गोइंग और स्टार्ट मेकिंग और स्प्रेडिंग देयर बिजनेस इनटू द अदर कंट्रीज़, तो उस जैसे मान लो इंडिया कोई कंपनी है और वो अमेरिका में जाके अपना बिजनेस स्टैब्लिश करती है और अमेरिकन मेड इन इंडिया कुछ भी खरीदते हैं, तो दिस इज़ फॉरेन ट्रेडिंग फॉर इंडियन कंपनी। और इन इंडिया अगर ये कोई भी मेड इन इंडिया परचेस करता है तो वो डोमेस्टिक ट्रेडिंग है, ठीक है। हाँ, आर्ग्यूमेंट्स देखिए, इनजस्टिस टू द एग्रीकल्चर। जब इस टाइप से चेंजेस होंगे तो फिर एग्रीकल्चर के साथ इनजस्टिस हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स वाले अपने हिसाब से उनसे डील करेंगे। हैवी डिपेंडेंस ऑफ फॉरेन डिपॉजिट, डिपेंडेंस एक्सेट्रा, एक्सेप्ट इंपॉर्टेंस ऑफ द प्राइवेटाइजेशन एक्सेट्रा। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आएगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है और उसने कैसे वर्क करना है, दैट वी विल डिस्कस in the next video. Thank you very much.